Okay, Ashka has also joined. So whoever has joined, kindly switch on your camera so that I can see your nice face and you can also see my handsome face. So what all we have done so far? So far we have done characteristics of equations, or not equations, reactions. क्या क्या characteristics थे? Evolution of gas. Change of state last होता है. Evolution of gas, formation of precipitate, then change of color, change of temperature, change of state. उसमें important हमेशा होता है evolution of gas और change in temperature. यही से ज़्यादा सर questions आते रहते हैं. So today we'll get into chemical reactions and types of reaction. I know many of you must have started this in your school, and by now if I say Atish बोल देगा sir combination reaction or addition reaction, displacement reaction, decomposition reaction. तो यहाँ पे कितने reactions होते हैं? Just for your time, आराम से पढ़ेंगे. We have combination reaction, which is also known as addition. We have decomposition, single displacement, double displacement, and redox. हम redox ही oxidation reduction है. redox stylish मतलब थोड़ा सा. तो ये redox को हम पहले पढ़ेंगे. As I told you in the first page of study, I will teach you a little bit more in detail. The main reason is redox is a chapter in grade 11. यहाँ जो इतना सा पढ़ोगे ना, one छोटू सा paragraph, that becomes one chapter in grade 11, and it will be one chapter is dedicated to redox, and again in grade 12 when you study electrochemistry, the ghost of redox will again haunt you. तो redox आपको थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है. ठीक है, तो we will start with redox. ठीक है, and then combination. बाकी सब छोटे छोटे हैं, आराम से, और आपको मजा आएगा. शुरू करें, चलिए. The reaction series name is oxidation reduction, और इसी को स्टाइल में Senorita became Sani, तो यहां से red आया और यहां से ox आया. तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में we call it as redox reaction. Now why redox is important? The entire thing of electrochemistry. What is electrochemistry? Something that you read in grade 8. Chemical effect of current, electrolysis, electroplating, electric refining. Then there are some decomposition reactions. Then there are some displacement reaction. In fact, 95% reactions obey redox, and it is of great use in industrial chemistry. Okay? Industrial chemistry means when you actually use chemistry for industrial purpose. आखिरकार आपको तो ज्ञान नहीं, आपको सामान बनाना है. You're gonna make some paint, you're gonna plate something, you're gonna coat something. So redox becomes very important for us. And redox is a reaction which always happens simultaneously. जैसे हम Newton's third law में पढ़ते थे, action reaction pair. If action has happened, reaction will happen or must have happened. So if redox में दो reactions होते हैं, so the name comes, there will be two reactions to it. One will be an oxidation reaction and one will be a reduction reaction. और ये दोनों एक साथ होते हैं, कोई अकेला नहीं होगा. Have you understood? This thing keep in mind, they happen simultaneously. एक साथ फॉर्म होते हैं. If oxidation has happened, reduction must have also happened. Our job in grade 10 would be to identify redox reaction, then identify what is oxidation, what is reduction, what is an oxidizing agent, blah blah, बहुत कुछ है. तो एक एक करके सीखते हैं. ठीक है. So oxidation reaction, पहला सीखते हैं oxidation. Oxidation क्या है? अब पहले बताएंगे आपको आपके एनसीईआरटी के बुक, और से इन लक्ष्मी सिंह whatever it is there. Children who have joined new, I'll also circulate the books that we follow, and if you know your friends who are here already, you can also get to know from them. Oxidation reaction as per NCERT definition, which is in your grade 10 level, right? We'll go much beyond that. Oxidation में we study it as oxidation is a process which is simply addition of oxygen. ठीक है, मैं पहले NCERT बता देता हूं. Addition of oxygen. ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, लेकिन ये आपको कम पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन कम पड़ेगा, और आज आपको ऐसा एक टेक्निक बताएंगे ना, ताबड़तोड़ आंसर निकलेगा. रिडक्शन क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. या किडोज ऑनलाइन, यू कैन रीड द बोर्ड. हेलो, कैन यू रीड द बोर्ड? बोर्ड पढ़ाई दे रहा है, तो हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा कोप कर लेना. ठीक है, क्या खुश हो गए ना?
हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है बोलते कितना खुश हो गए ना, तुम लोगों से काफी बेहतर है। हाँ चलो, हाँ कोई सवाल पूछ रहा था, somebody was asking, tell me this word simultaneously, एक साथ होता है बेटा। she has proved your handwriting is not good, so simultaneously oxidation अगर होगा तो reduction होता ही होता है। they are like what do you say, जब high end mythology पढ़ोगे ना, evil and good, अगर भगवान है तो शैतान होना ही पड़ेगा, तभी तो आप भगवान की महिमा को जानेंगे। If there is good, there has to be bad. If there is light, there should be dark. Otherwise, आप प्यासा है तो ही पानी होना पड़ेगा, नहीं तो आप समझेंगे कैसे पानी का स्वाद क्या है। So it is addition of oxygen. ये है NCERT approach number 1. Number 2, NCERT इस क्लास में आपको सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के ऊपर बेस कराता है। So रिडक्शन में हम कहते हैं addition of hydrogen, and this will be known as, यहां पे क्या हो जाएगा, removal of hydrogen, So what does NCERT teach us at grade 10 level? At grade 10 everything is correct, nothing is wrong. At grade 10 we get to know that there are two type of reactions which happen. One reaction is called an oxidation reaction and one reaction is called a reduction reaction. Both the reactions are happening in the same reaction. एक ही रिएक्शन में दोनों घुस के बैठा हुआ है। Our job is to identify what is the oxidation reaction, what is the reduction reaction. How will we identify? तो हमें कुछ एक टिप्स दे दिया है। If oxygen is getting added, it is oxidation. If oxygen is getting removed, it is reduction. If hydrogen is getting added, it is reduction. If hydrogen, इससे आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, पर ये काफी नहीं होगा आपके लिए। दिस विल एंड इसमें जाके आप बाद में कंफ्यूजन होगा, सब होगा। तो अभी आपको बताएंगे प्रॉपर टेक्निक जिससे आप कोई भी रिएक्शन देख के फटाक से ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ बोल सकते हैं, एकदम वन शॉट एंड वन मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें। आर यू रेडी? चलिए, उस टेक्निक को सीखने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज समथिंग कॉल्ड, और ये सब सीख लो अगर आपको 11 में पढ़ना है केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन नंबर, or somebody would also call it as the oxidation state. What is oxidation number or oxidation state? The number, सुनिए पहले लिखिए मत, you know nothing about it. So if I say oxidation state is all about a watermelon, आप वही लिखोगे। सुनो पहले, oxidation state or number means the number with a sign that appears on an element, सुनिए पहले, the number with a sign that appears on an element when it is being shown as an ion, or the effective charge on that atom when it is a part of a molecule. बहुत हाई एंड हो गया है, सीखते हैं। मतलब से कॉपर इज एन एलिमेंट, इफ कॉपर इज शोन एज एन आयन, कॉपर को हम लिखेंगे कॉपर 2+ दिखा सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से एज कॉपर प्लस। दिस आर कॉल्ड द आयंस। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज ए आयन? अच्छा, आयन कहां से आता है? कोई भी एटम क्या कर सकता है? माइट गेन एन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस Ne, n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू आर गेनिंग। अगर आप गेन करोगे तो आप क्या बन जाते हो? आप बन जाओगे एक आयन बन जाओगे। एंड सिंस यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, योर नेगेटिव चार्जेस विल इंक्रीज, सो मेनी n's विल इंक्रीज, सॉरी -n हो जाएगा अगर आप गेन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो बन गया Cl-। ये कैटायन नहीं है, एनायन है। कैटायन को हमेशा याद रखिए, कैटायन, कैट आयन, अब गलती नहीं करोगे। कैटायन मींस पॉजिटिव। एटम इफ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन आयन। आयन इज लाइक आत्मा, इंटरमीडिएट स्टेज है, होता नहीं है, अनस्टेबल है। और एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इफ एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, कितना? सो इट बिकम्स एन आयन, सो इट बिकम्स अ +n एंड Ne, इतना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर ने Cu2+ फॉर्म किया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। दिस इज कॉल्ड अ कैटायन। So I was saying, what is an oxidation state? Oxidation state or number is the number with the sign that appears on an element if it is shown in the ionic form. So can I now ask you, what is the oxidation state of copper in Cu2+? 2+ और +2। Cu+ में कितना है? +1।
what is the oxidation state of chlorine in Cl -1? समझ में आया? ये हुआ आयन. अब ये सब सेकेंड राउंड में नहीं पढ़ाएंगे. सेकेंड राउंड विल गो डायरेक्ट एनसीईआरटी. इफ यू आर हैविंग पॉलीएटॉमिक आयन लाइक अ सल्फेट आयन, पॉलीएटॉमिक इंग्लिश जानते हो ना, मेनी एटम से बना हुआ आयन, ये मोनोएटॉमिक आयंस हैं, एक ही टाइप के एटम से बने हैं. पॉलीएटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम से बने. सल्फेट इज SO4 2-. So if I ask you what is the charge on sulfate, you will say 2-. Right now we cannot allocate this 2- either to oxygen or to sulfur. This is overall to the sulfate ion 2-. इधर हम इसे चार्ज बोलेंगे, यहां भी चार्ज बोल सकते हैं, पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी है. क्लियर हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट when it is in an ionic form. And say for example we have an element in a molecular form, HCl, hydrochloric acid or hydrogen chloride. We all know that chlorine is -1, तो हाइड्रोजन कितना होना पड़ेगा? +1, तभी ना वो न्यूट्रल बनता है. Whenever you see any molecule of HCl का ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा? 0 है. तो अभी हम बात करेंगे what is the oxidation state of hydrogen in HCl? +1. What is the oxidation state of chlorine in hydrogen chloride? -1. So with the same idea, now I am asking you, what is the oxidation state of sulfur here? हमें नहीं पता, सल्फर नहीं पता, तो सल्फर के हमने X की बिंदी पहना दी. Sulfur is X. How many oxygens do you have? 4 oxygens. Each oxygen is always 2-. How did oxygen become 2-? ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा किडनैप करेगा, तभी तो ऑक्टेट फॉर्म होगा. और 2 इलेक्ट्रॉन जब मैंने ले लिया तो मेरे 2 माइनस सर के ऊपर बढ़ गए. सो ऑक्सीजन इज 2-. ये सब कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. क्लोरीन इज 1-, बिकॉज क्लोरीन इज ग्रुप 17, एक ही माइनस आएगा. ऑक्सीजन इज 2-. कितने ऑक्सीजन है? 4 of these oxygen into -2 should be the overall charge, which is -2. ठीक है? 4 into -2 कितना हुआ? -8. -8 उस साइड जाएगा तो +8. +8 और -2 करेंगे तो कितना आएगा? X is equal to 6. यानी सल्फर यहां पे +6 होके बैठा है. अब हिसाब कर लो, सल्फर कितना है? +6. ऑक्सीजन कितना है? -8. +6 और -8 -2. So this is the -2. थोड़ा और देखते हैं. इतना थोड़ा समझ में आया है? What is oxidation state? Oxidation state is the number with the sign that appears on an element when it is shown as an ion. And when the element is part of a molecule, neutral molecule, then it is the charge on that particular, इसको हम कहते हैं apparent form. This is an apparent charge. What is the apparent charge on that particular atom? थोड़े एक दो और देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा. Don't lose heart immediately. ठीक है? चलिए कुछ आयंस देखते हैं. जिंक वी ऑलवेज नो इज इन +2 स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? Zn+2. कुछ बता देता हूं आपको. कॉपर कैसा रहता है? यूजुअली +2. हाइड्रोजन कैसा रहेगा? +1. ऑक्सीजन कैसा रहेगा? -2. दीज आर ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ग्रुप 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, ली, ना, ई, रब से फरियाद, सब कुछ +1 होगा. ग्रुप 2 में कौन कौन है? बेरिलियम कितना होगा? +2. और क्या है? मैग्नीशियम, ये भी +2 में आएगा. कैल्शियम +2 में आएगा. और आगे देखने की जरूरत है, हमें 20 तक ही चाहिए ग्रेड 1 और 10 में. क्लियर? अगर हम ग्रुप 13 में देखें तो हमें क्या मिलता है? बोरॉन +3 में मिलता है, एल्यूमिनियम +3 में मिलता है. इतना जानने से राजा बन गए आप. चलिए थोड़ा उस साइड चलते हैं. नाइट्रोजन -3 में आता है. फॉस्फोरस -3. नहीं, नाइट्राइट से मतलब नहीं है. यू सी व्हाट इज द चार्ज? नाइट्रोजन हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7. 7 मींस 2 5. 5 मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन मालपुए की तरह खा लेगा, तो 3- आ गया उसके ऊपर. नाइट्रोजन के बाद वाले ग्रुप में कौन आता है? ऑक्सीजन -2. उसके बाद वाले ग्रुप में कौन आता है? क्लोरीन -1. आयोडीन कैसा होगा? -1. क्लोरीन कैसा होगा? -1. ये सब -1 है. इतना भी पल्ले बैठ रहा है थोड़ा सा. अब कुछ मॉलिक्यूल्स देखते हैं. जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, H2O. वो यहाँ से पूछता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट? H2O ओवरऑल इज न्यूट्रल, 0.
ऑक्सीजन कितना होता है हमेशा -2, देखो हिसाब मिल जाएगा, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1 पे रहता है, +1 × 2 इज +2, -2 0। समझ में आया? सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, जैसे H2SO4, तो आपको मैंने बताया था SO4 क्या होता है, SO4 ओवरऑल इज -2, हाइड्रोजन इज +1, 2 × +1 इज +2, 0। अभी बैठ रहा है थोड़ा धीरे धीरे। सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जैसे हाँ आ रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन इज -1, तो सोडियम शुड बी +1। हाँ, व्हाट अबाउट, क्या पूछ रहे थे? हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हमें नहीं पता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर इज ऑलवेज -2, हाइड्रोजन इज +1, सो ये +1 होना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं आता है तो रोज आप एक चीज बोतल में पीते हो, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये वाटर ही तो है। वाटर स्प्लिट्स अप इनटू अ हाइड्रोजन आयन एंड अ हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड हमेशा माइनस होता है। थोड़ा समझ में आया? इसको लेके आगे हम समझेंगे, जब इक्वेशंस करेंगे और समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ ऑक्सीजन +1, हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, एक इलेक्ट्रॉन खो देता है ना, हाइड्रोजन आयन इज सेम एज प्रोटॉन, वन हाइड्रोजन आयन एंड प्रोटॉन आर सेम थिंग, हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, तो अगर आपने उसके इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर लिया तो क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन बचा। मल्टीपल वैलेंसीज में देखेंगे, इसलिए उसको फिक्स नहीं करते हैं, उसके बाकी वालों को फिक्स करते हैं। लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर, कॉपर कैन बी +1 +2, मैग्नीशियम, मैंगनीज के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, 7, सल्फर के भी 8 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो उसमें हम सल्फर को X ले लेते हैं, बाकियों को फिट करते हैं, देन वी फाइंड आउट सल्फर यहां किस रूप में आया है। डू यू अंडरस्टैंड? लाइक मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, KMnO4, देयर मैंगनीज विल बी इन डिफरेंट स्टेट, MnO2 में डिफरेंट स्टेट में रहेगा। आप करके देखना चाहते हैं? MnO2 बताओ तो इसमें मैंगनीज कितना होगा, यहां -2 है तो -4, आई थिंक मैंगनीज शुड बी इन +4। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो तभी आप कर पाएंगे फटाफट। ऑक्सीजन इज -2, 2 ऑक्सीजन -2 -2 -2 -4, सो दिस इज +4, राइट। अब यहां पे देखो तो KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनीट, पोटेशियम ग्रुप 1 +1, ऑक्सीजन -2 मतलब कितना हो गया, -8 हो गया, -8 +1 -7, -7 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम को +7 का रूप धारण करना पड़ेगा। ये सब पुराने जमाने देवलोक जैसा है, हा, अलग राक्षस बन गया यहाँ पे। सो दीज आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको वेरिएबल वैलेंसीज देखने को मिलती है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आता है। सो टाइम नाउ टू लिटिल बिट अमेंड आवर चार्ट, लेट्स अमेंड आवर चार्ट। तो चार्ट को बनाना शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाते हैं। ऑक्सीडेशन समझो, लिखने की जल्दबाजी बाद में, द होल क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, प्लस यू विल गेट क्लास नोट। फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। So far you understood it as per NCERT only in 2 forms, oxygen and hydrogen, ठीक है। Addition of oxygen is oxidation, removal of oxygen is reduction। Addition of sorry उल्टा लिख दिया, removal of hydrogen is oxidation, addition of hydrogen is, ठीक है। Now starts our first concept that we understood, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें लेकिन समझिएगा, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, अ डिक्रीज इज रिडक्शन, एंड दिस विल बी योर मोस्ट हैंडी टूल। सब इसी से करेंगे। अब इंक्रीज का मतलब क्या है, दिस इज अ एल्जेब्रिक इंक्रीज। सर इतना इंग्लिश नहीं आता है, एल्जेब्रिक मतलब -2 से अगर कोई -1 हुआ तो इंक्रीज, 0 से अगर 1 हुआ तो इंक्रीज, 1 से अगर 3 हुआ तो भी इंक्रीज, 0 से अगर -2 हुआ तो डिक्रीज, 4 से 2 हुआ तो डिक्रीज, -2 से -4 हुआ तो भी डिक्रीज। सो दैट डिक्रीज और इंक्रीज विल ऑलवेज बी एल्जेब्रिक, रिमेंबर दैट इन माइंड, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे। एक और टेक्निक है, उसको भी सीख लेते हैं। रेडी?
and then we will see reactions one by one. चिंता मत करो, आज तो मजा आने वाला है. आओ बच्चा, अभी ना तुम सीखोगे. आइए. The next one we call is the electron transfer technique. ये लेकिन कैम्ब्रिज और IGCSE में this is there in their grade 9 itself. आपको नहीं सिखाया जाता है, ऐसा सीख लो. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां बड़ा बढ़िया सा राइम है इंग्लिश में, रिग, और एक है ऑयल. यू नो व्हाट इज एन ऑयल रिग? इफ यू गो टू एनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वेयर असम, मैं तो वहीं से आया हूँ, तो पेट्रोलियम जहाँ रहता है ऐसा एक डेरिक रहता है, ऑयल रिग, जहां से ऑयल का ड्रिलिंग होता है. और इफ यू सी सऊदी कंट्रीज एंड ऑल, ऑयल रिग, तो उसको हम कहते हैं ऑयल रिग. ऑयल रिग वो स्टेशन है जहां से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है. ये नाम याद रखिए. तो सर क्या आप पेट्रोलियम पढ़ाने वाले? नो नो, ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज loss of electrons. Reduction is gain of electrons. Very good. Reduction is gain of electron. सर कुछ समझे नहीं हम लोग इसको, आप क्या कहना चाहते हो? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं. Let us take one reaction. जैसे ये वाला रिएक्शन होता था ना, metal reacts with acid. क्या था? Metal reacts with acid to form metal salt and releases hydrogen gas. तो ZnCl2 plus hydrogen gas. तो यहाँ पे इसको 2Cl कर दिया. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आपको कोई ऑक्सीजन दिख रहा है? यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है. यही सब में आप फंस जाओगे अगर आप ओनली, इफ यू कीप योरसेल्फ लिमिटेड टू ओनली व्हाट यू कॉल ऑक्सीजन एंड व्हाट यू कॉल हाइड्रोजन, आप फंस जाओगे. तो we need to understand what is electron transfer. ये रिएक्शन का आपको एक दिन मैकेनिज्म समझाया था, याद है वो मैकेनिज्म? आओ मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं. हाउ डज दिस रिएक्शन हैपन? जिंक जो है ना, जिंक इज अ मेटल. जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है हमेशा और 2+ बन जाता है. याद है मैं बोलता था मांगलिक बन गया. इन नॉर्थ इंडियन कल्चर मांगलिक लड़के का शादी मांगलिक लड़की से ही होता है. You can't marry a मांगलिक boy with another girl. नहीं, पहले तो पेड़ के साथ शादी होता है, उसके बाद शादी हो. घर में पूछना जाएगा, सर ने मांगलिक वाला कांड समझाया, ये मांगलिक हो गया. एंड माय केमिस्ट्री सर इज टू कॉल इट, यह कलंकित हो गया, सर पे कलंक आ गया. कलंक, ही वाज मलयाली. कलंक आ गया. देखो, छोड़ दो इसको. हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl will always split as H+ Cl-. तुमने 2HCl लिया है तो 2H+ और 2Cl-. समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो. प्लीज कॉल मी अ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ caring zebra. Instead try learning how copper saves gold. So zinc is much more reactive than hydrogen. जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन का गर्लफ्रेंड उठा के ले जाएगा. किसको? क्लोरीन को उठा लेगा. देखो, जिंक विल पिक अप क्लोरीन, तो जिंक क्लोरीन को पिकअप करेगा. यहां पे आपका ओम स्वस्ति न स्वाहा एक शादी होगा, बढ़िया शादी. ये 2+ है, इसको शांत करने के लिए 2- एंटिटी चाहिए. यही कंपाउंड और कुछ नहीं, ये है. समझ में आ रहा है? और फिर ये क्या है? ये अकेला रो रहा है अभी, ये रो रहा है, हमारा घर बार बिगड़ गया. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहता है तुम एक काम करो, तुम हमको ले लो, तुम हमको ले लो. एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 हाइड्रोजन एटम. एक और हाइड्रोजन आयन एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 मोर हाइड्रोजन एटम. दोनों हाइड्रोजन एटम एक साथ जाएगा तो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू नाउ अपनी जिंदगी का 2 मिनट रिवाइंड करो और इस प्रोसेस को देखो. जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोए. जिंक लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन. अगर तुमने दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार ने पैसे लिए. अगर लॉस है तो कहीं गेन है. यहां गेन हो रहा है. रिग, हमने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गेट्स रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन. हमारा सर एक और चीज अच्छा बोलता था, ऐसे भी समझ सकते हो.
ये सब लेकिन एग्जाम में लिखना मत, देसी टेक्निक। इफ यू सी द एलिमेंट अलोन, मतलब अच्छा बच्चा, कैसा अच्छा बच्चा, जब ये किसी के कंबाइन में रहता है गंदा बच्चा। अच्छे बच्चे से गंदा बच्चा बनना इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हेन स्केल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने देखा कोई अभी पी टावर में लोग नए नए एसी लगाएंगे, देयर कॉपर पाइप्स विल बी एब्सोल्युटली कॉपर इन कलर, 6 महीने जाने के बाद एकदम ब्लैक हो जाएगा। व्हाट हैज हैपेंड? ऑक्सीडेशन। रस्टिंग इज आल्सो ऑक्सीडेशन। व्हेनेवर यू सी स्केल फॉर्मेशन, फिर आपके घर में जैसे पीतल के पूजा हो गया एंड यू आर नॉट यूजिंग योर पीतल यूटेंसिल्स, दे बिकम वेरी डल, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन मतलब अच्छा बच्चा गांधा बच्चा बन गया, हिज एक्सेंट वाज लाइक दैट, और गांधा बच्चा अच्छा बच्चा बन गया, ये रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब तुम्हारे अंदर जितने तेवर थे सब गायब हो गए और आज से तुम बन गए साधु। तो रिग का केस समझ में आया? ये भी आप 11 में पढ़ेंगे और हम कभी कभी यूज भी करेंगे इसको। या प्लीज। I didn't get you, come again. अरे आपकी मर्जी मैडम, आप जो लिखो। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज लंदन, आपको अगर उससे याद रहता है आप जैसा मर्जी रखिए, लेकिन ऑयल रिग इज अ गुड वे ऑफ रिमेंबरिंग, है ना? Her questions I always like, instead of tomato ketchup, can we call it red liquid in the bottle? Yes, as long as you get taste in it, there's no issue. ऐसे बच्चों समझ में आया व्हाट इज ऑक्सीडेशन? मतलब ऑक्सीडेशन नहीं, आपको लॉस और ये समझ में आया ना, हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, गेन होगा। तो आइए हमारे पुराने चार्ट को और भर देते हैं। कैसे? एक और क्राइटेरिया ले आते हैं, एंड दैट लास्ट क्राइटेरिया इज समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया। इलेक्ट्रॉन में कैसा लिखेंगे? OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या लिखेंगे? रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको बुक में ओनली ये दो रहता है, मैंने ये दो ऐड किया है, और इन दोनों में ये तो रामबान का काम करेगा आपका। With this you will be solving every damn reactions, and I have got some 16 reactions today, so fasten your seat belts and get ready. We're going to do 16 examples in which you will get clear, right? There is actually one more technique also, वो भी लिख लो। वो NCERT कहता है, तो वो ऐसा है। NCERT में है कि नहीं पता, मैंने लखबीर सिंह में कभी तो देखा था, तो लिख के रखो इसको, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जानना जरूरी है, बिकॉज इन 11 यू विल नीड ऑल। इन दिस ग्रेड ऑफ ग्रेड व्हाट यू कॉल 10, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, दिस इज लाइक दैट ABCD टेक्निक ऑफ बैलेंसिंग। अगर ये सीख गए ना, तुम कोई भी इक्वेशन कर दोगे, कोई भी इक्वेशन कर दो। ये दोनों में कर पाएंगे, कर पाओगे, कभी लटको मटको हो सकते हो, इससे नहीं होगे। ये है थोड़ा और, ये है ZX, ये है VX, और आगे मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और अभी ये वाला जो है बहुत पुराना है, ये सीख लो। इसमें होता है, मेयोनीज खाए हो? मेयोनीज, मेयो का स्पेलिंग क्या होता है? MAO, इसमें MAO याद रखना। एडिशन ऑफ अ मेटल, इसमें हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, और नॉन मेटल, तो क्या याद रखने बोला? MAO, एडिशन ऑफ मेटल, मेटल एडिशन इज ऑक्सीडेशन, मेटल टेक अवे इज रिडक्शन। तो नॉन मेटल में जैसे उल्टा होगा, माइनस डाल दो, यहाँ प्लस डाल दो। मेयो क्या हो वेदांत, बड़ा टेंशन हो गया तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं यार, ट्रेलर है पिक्चर का। इस बार साइंस का किताब इतना, अगले साल केमिस्ट्री पार्ट 1 NCERT में इतना, रेफरेंस बुक इतना, और पार्ट 2 इतना, 12 में इतना इतना। मुझे उस आदमी के ऊपर गुस्सा आता है जो मुझे क्लास 6 से बोलता था, बेटा इस साल पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एग्जाम दे लो, उसके बाद तो आराम ही आराम। वो कभी आराम आया ही नहीं जिंदगी में, हर साल आराम के बाद एक के बाद एक के बाद। हाँ बोलो। अच्छे से नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, चलो एक बार फिर से। कुछ भी समझ में नहीं आया बोल देने का बेटा। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुमको उल्टा इंजीनियरिंग समझाते। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है जो कि एक साइन के साथ लग के आएगा। किसके साथ लग के आएगा? एक नंबर के साथ लग के आएगा, प्लस या माइनस के साथ। व्हाट इज दिस नंबर? दिस नंबर यू विल सी ऑन द हेड ऑफ अ एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो एलिमेंट का जो सिंबल है, ठीक है ना? इफ द एलिमेंट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एन आयन,
सर एक एग्जांपल भी दे दीजिए। ले लो सर, जैसे मान लो एलिमेंट है कॉपर और कॉपर का आयन है Cu+2, सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ बेटा? +2। समझ में आया? क्लियर? सर आपको प्लस से इतना क्यों प्यार है, एक माइनस का भी एग्जांपल दीजिए। चलो ले लो माइनस का। नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट N3- करके रहता है, तो ये है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? It can also be a number which can appear on an element as its charge when it is a part, आज क्या हो रहा है, इतना मिस हो रहा है, part of a molecule, when it's a part of a molecule। अब इसी एलिमेंट को ले लेते हैं कॉपर। कॉपर को एक मॉलिक्यूल, when it's a part of a molecule, तो भैया कॉपर ऑक्साइड मान सकते हैं ना, कॉपर ऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, कॉपर इज नाउ अ पार्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अभी इस पे कितना चार्ज है सर हमको नहीं पता, पर तुमको तो ऑक्सीजन पता है ना -2, तो ये कितना होगा, ये +2 होना ही पड़ेगा। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ कॉपर का, और इसका माइनस। तुम्हारे घर का नंबर तुम्हारा ही तो होगा ना, मेरे घर का नंबर थोड़ी होगा। कुछ भी एक पूछ देता हूँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहां पे देखो ऑक्सीजन का कितना है, ऑलवेज -2, -2 into 2 is -4, यानी कि कार्बन यहां पे +4 का रूप धारण करके बैठा है। क्लियर? Anyone has any doubt? And how to interpret it in redox? If there is an increase in the oxidation state, increase means algebraic increase, 0 to 1 is also an increase, -1 to 0 is also an increase, then such a case is called oxidation. And we will also verify with your NCERT system. So are you ready? थोड़ी देर में आपको जलपान पेश किया जाएगा, कृपया अपने ट्रे टेबल्स खोल लीजिए, कुर्सी सीधी कर लीजिए, आइए जलपान खाया जाए। Anyone any question? रुद्र भाई साहब क्वेश्चन, आनिया, अक्षत साहब, किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके अरे अराफात हैज जॉइंड ऑनलाइन, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये 5वां कहां से आया, किसी ने लिंक चुरा लिया क्या? मैं तब से सोच रहा हूँ हु इज दिस 5th वन। ऊपर से तुमने ना इतना बैकग्राउंड वो कर दिया है, कैनवस कर दिया है, एक तो तुम बीच बीच में गायब हो जाते हो, बाथरूम में बैठ के कॉल ले रहे हो क्या? कपड़े तो पहने हुए हो, फिर इतना मास्किंग करने की क्या जरूरत है? हेडफोन लगा के ऐसा लगता है AI131 runway 09 cleared for you now to land please। Yeah, good morning ICICI, this is Arafat, how may I help you? चले आगे पहला इक्वेशन। अच्छा इस पूरे इक्वेशन में हमें क्या क्या ढूंढना पड़ता है, ठीक है? पहले लिख ले, लेकिन आराम से लिखना, सुनो सुनो मजा लो, हाँ सब रहेगा। इस पूरे चीज में हमारा जो कि यूनिट टेस्ट में आपको भी आ सकता है, आपको जानना होगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। पहले ये दोनों चीज सीख लेते हैं, बाकी वाला चीज अतिश अभी चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो, ठीक है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चले, ये सब इजी इक्वेशंस है। आइए एक एक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन कितने में बैठा हुआ है? -2, तो कॉपर कितने में बैठा हुआ है? +2। हाइड्रोजन कितने में बैठा हुआ है यहाँ ना? 0, अलोन है तो 0, कोई है क्या हाइड्रोजन के साथ? तो वो अपना स्केचपेन क्यों शेयर करे, न्यूट्रल है ना। हाँ ट्रिक है। ओवरऑल चार्ज ऑन कॉपर ऑक्साइड इज 0, ओवरऑल चार्ज ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर 0। तो हाइड्रोजन 0 लेके बैठा, तुम कैसे +1 बोलोगे? +1 है, एक हाइड्रोजन सर +1 है, एक हाइड्रोजन -1 है, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन 0 स्टेट पे है यहाँ पे। क्लियर? आगे चलते हैं। कॉपर कितने में है यहाँ पे? कौन 2+ बोला? 0, बिकॉज इट इज अलोन, 0। यहां पे ऑक्सीजन कितने में है? हाइड्रोजन +1, +2 नहीं होगा, +2 होने से 4 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन कितने में है? पूरा ढांचा बन गया हमारा, देखना शुरू करें। कॉपर था +2 और कॉपर बन गया 0, कॉपर +2 से 0 बन गया, ये हमारा नंबर लाइन है। हाँ दिस इज आवर नंबर लाइन 0, इस साइड में पॉजिटिव्स है, इस साइड में क्या हुआ बेटा? नंबर में रिडक्शन हुआ कि
इंक्रीज हुआ, रिडक्शन हुआ ना, +2 से 0। तो ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन प्रोसेस है। आराम से, हाइड्रोजन था 0, हाइड्रोजन बन गया कितना, +1। तो ये प्रोसेस हमारा कितना था, हाइड्रोजन कैसा था, हाइड्रोजन 0 था, 0 से +1 बना, तो ये है ऑक्सीडेशन। नाउ हाउ विल यू राइट, कैसे हम लिखते हैं, सुनिए लिखने का टेक्निक, ऑक्सीडेशन वी विल राइट CuO ऑक्सीडेशन ना, सॉरी, सो ऑक्सीडेशन में हम लिखेंगे H2 ऑक्सीडाइजेस टू H2O, रिडक्शन में क्या लिखेंगे, CuO reduces to Cu। और देखो मेरे केमिस्ट्री सर की बात याद करो, गांधा बच्चा अच्छा बच्चा बन गया, हो गया ना रिडक्शन। और यहां पे क्या था, अच्छा बच्चा गांधा बच्चा बन गया, ऑक्सीडेशन। अरे काम, हाँ ऐसे केरला से थे सर हमारे, वो जो पढ़ाते थे, we used to be like 2 classes ले लो, 3 classes ले लो, we used to love it. Sir was excellent, or sir is excellent, not clear, समझ में आया? Now let's see the NCERT technique or your book. Your book says addition of oxygen is oxidation. Hydrogen was akela, it added oxygen, so it is oxidation. Removal of oxygen is, कॉपर था विथ ऑक्सीजन, बोला हटो मुझे पसंद नहीं हो तुम, रिडक्शन। क्लियर? अच्छा, अब फिर से थोड़ा कहानी सुनना होगा, कहानी के लिए यहां पे आ जाओ। अच्छा बच्चा गंदा बच्चा कहानी है, ये है छोटा में जो है वो है गंदा बच्चा। गंदा बच्चा एक अच्छे बच्चे के साथ मिक्स होना शुरू हुआ। किसके साथ? अच्छे बच्चे के साथ मिक्स होना शुरू हुआ। ये कौन है? अच्छा बच्चा। और फिर कैसा है, YouTube में जैसे बोलते हैं 5 months later, 5 months later, 5 months later कैसा हो गया, जो हमारा गंदा बच्चा है ना, गंदा बच्चा अच्छा बच्चा बन गया, ये व्हाइट वाला बन गया अच्छा बच्चा, ठीक है? और येलो वाला कैसा बन गया, वो गंदा बच्चा बन गया, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, अच्छा बच्चा जब गंदा बच्चा बनता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और गंदा बच्चा जब अच्छा बच्चा बनता है इसको बोलते हैं रिडक्शन। ये तो हमने सीखा। अब एक सवाल, ये गंदा बच्चा था, ये इसके मिक्सिंग में होने के बाद अच्छा बच्चा, इसको अच्छा बच्चा किसने बनाया? इसने बनाया। इट गॉट रिड्यूस्ड, हु रिड्यूस्ड इट? द वन हु गॉट ऑक्सीडाइज्ड। यू करेक्ट, अच्छा बच्चा, द वन हु गॉट ऑक्सीडाइज्ड। जो अच्छा बच्चा रहता है वो खुद गंदा बनेगा और किसी और को अच्छा कर देगा, और जो गंदा है वो खुद अच्छा बन जाएगा, किसी और को गंदा कर देगा। सो इफ वी से, इफ आई आस्क यू रिड्यूसिंग एजेंट, लिखो मत, समझो, रिड्यूसिंग एजेंट, द वन हु एड्स, एड्स मतलब समझे तो इंग्लिश में, एड्स मतलब हेल्प्स। आई होप योर इंग्लिश इज गुड, यू नो, एड्स का मतलब होता है हेल्प। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मत लिख देना, वो बीमारी वाला एड्स है। द वन हु हेल्प्स इन reduction, the one who helps in reduction, not the one who got reduced, the one who helps in reduction. Who helps in reduction? He's the one who got oxidized, है ना? ऐसा हमारा एक पोएम था इंग्लिश में, एक नाइटिंगेल बर्ड था और एक रोज था, वो रोज मुरझा जा रहा है साइबेरिया में, and the nightingale bird takes the thorn of the rose into her chest and starts giving its blood to the rose. मतलब कवि की ये कल्पना है, and the rose starts blooming and the nightingale slowly closes her eyes. तो जिसने लाइफ दिया वो है लाइफ गिवर, और लाइफ गिवर का हाल क्या हो गया? डेथ। और जिसका वो डेथ होना था उसको मिल गया लाइफ। तो वही वाला फंडा यहाँ पे भी आता है। The one who gets oxidized is known as the reducing agent. And so our next question comes, sir, what about the oxidizing agent? The one about the oxidizing agent? Oxidizing agent is one who aids in oxidation. Therefore, it is the one who got reduced. बच्चों अभी जो मेरे साथ ये पढ़ रहे हो ना,
ये बहुत इजी टू एब्जॉर्ब है और इजी टू फॉरगेट। अगर आप घर में इसको 3 दिन के अंदर वीडियो देख के नोट्स नहीं बनाओगे, it will just get washed off from your mind, and next class when you come, you yourself will not be able to answer what you answered here. समझ में आया? तो हमारे सवाल में फिर से चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2-3 और चीजें आंसर करनी पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो ऑक्सीड, और इतना दिमाग नहीं लगाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां से निकालो, यहां से, द वन हु गॉट रिड्यूस, CuO, वेरी गुड। रिड्यूसिंग एजेंट H2, देखो सीख गए तुम। रेडी? अब बाकी वाला कॉपी करने का टाइम नहीं होगा, बाकी वाले हम एक साथ करेंगे। इसका PDF बनेगा, इसका रिकॉर्डिंग बनेगा। आप घर में थोड़ा सा खेल कूद कम कीजिए और यहाँ पे लगाइए। You can't wrap up everything out here. Here you are here to understand. Shall we go to the next? Starters over? Main course? चलो मेन कोर्स। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, चलते हैं। सबके सर पे पहले नापने हैं। हाइड्रोजन इस कितना? +1। +1 करने के लिए +2 हुआ, तो ये -2 है। ये लड्डू में है, ये लड्डू में है, और ये कितना है? ये +1 में है, ये -1 में है। ये तो एकदम इजी है। अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा लगा लो इसमें, और क्या। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन 0 से कितना हुआ? यहाँ पे स्टाइलिश है। अगर आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन कितना हुआ? 0 से -1 आया है। Is it an increase or decrease? Yes. So decrease means reduction. हर टाइम वो फंडा काम नहीं करता है। देखने से लगता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन लग रहा है ना, अकेला था, किसी के साथ पेयर्ड हो गया। ऑलवेज गो बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा चलो, सो लुक एट सल्फर आउट हियर। हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन पहले भी नहीं पढ़ता था, अब भी पढ़ाई नहीं करता है, एकदम दीपांशु की तरह। देखो +1 हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं। तो किसमें चेंज हुआ है? सल्फर। सल्फर पहले था -2, अब कितना बना? 0, यानी कि इसमें इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट? दिस इज आवर रिडक्शन। नाउ यू कैन कंप्लीट इट, एंड दिस इज माय ऑक्सीडेशन। सो इफ आई आस्क यू अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and the reducing agent, can you tell me? Oxidizing agent is chlorine, very good, chlorine, and reducing agent is hydrogen sulfide. अब जरा NCERT का टेक्निक देखते हैं। NCERT कहता है removal of hydrogen is oxidation, removal of hydrogen is oxidation, and addition of hydrogen is reduction. विश्वास नहीं आ रहा है तो पुराने स्लाइड में चलते हैं। कहाँ गया भाई साहब? ये देखिए, ये देखना। Removal is oxidation. 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 Hydrogen remove हो गया, देखो oxidation. Clear? अंगद सोच रहा है कहीं से गलती मिल जाए इस क्लास में, अभी इस क्लास का मैं बेड़ा गर्क कर दूं। अक्षत साहब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा भी आएगा तो भी चलेगा। अरे अच्छे से समझ में आ गया, वही जबरदस्त। अद्वैत ठीक है, क्लियर? अगला बोलते हैं, अगला आइटम मिक्स वेज, पनीर बटर मसाला। अब मिक्स वेज, चलो इसका तुम लोग खुद करो। क्या रहेगा? ZnO में O कितना है? -2, तो Zn +2। धीरे धीरे तुम्हें सब आदत। ये 0, ये 0, ये क्या है? -2 +2, तो 0। तो सबसे पहले हम जिंक को देखेंगे। जिंक था +2 पे, जिंक चला गया कितने में? 0 पे चला गया है। ठीक है, मैं सिर्फ लिख रहा हूं यहाँ पे। ऑक्सीजन का लेकिन कुछ नहीं, ऑक्सीजन -2, तो ऑक्सीजन को भूल जाओ। और कौन रह गया? कार्बन। कार्बन कितने में है बेटा? लड्डू। और कार्बन कितने में चला गया? +2 पे चला गया, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। चलो इसको आप लोग खुद भरो, क्विक क्विक क्विक, वी हैव गॉट लॉट्स टू डू। इसके बाद कोई पेरेंट भी आने वाला है। हाँ, तो बना दे मैप यहाँ पे। ये वाला क्या लिखें? +2 से 0 रिडक्शन, और ये वाला क्या लिखें? ऑक्सीडेशन। NCERT फॉर्मूला लगा दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिस।
और OARA बता दो, OARA रिडक्शन किसका हुआ है? इसका ZNO, तो ये है ZNO और ये है कार्बन। अच्छा, यहां पे एक चीज याद कर लो बेटा, जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे और रिफाइनिंग पढ़ोगे और आगे आप में से कोई भी मेटलर्जिकल साइंस पढ़ेगा, आप स्टील प्लांट में काम करेंगे, कार्बन, ये आप क्लास 8 में पढ़े थे शायद, याद नहीं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक इज ऑलवेज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, मतलब हमें जब आयरन मिलता है ना, आयरन हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगा प्लस, पर आपको तो आयरन चाहिए, मतलब आयरन को जीरो में निकालना है, जीरो समझ रहे हो ना, यू विल गेट आयरन ऑक्साइड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे आयरन क्या स्टेट में है? +2, पर आपको क्या चाहिए? आपको अक्षत को पीटने के लिए आयरन चाहिए जिसका जीरो होना चाहिए, तो आयरन को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तब हम रिड्यूस किससे करते हैं? कार्बन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। कोक डज नॉट मीन द कोका कोला। कोक क्या होता है, किसी को याद है? कोल को हीट करते जाइए, उसके सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स निकाल देने के बाद जो बचता है वो है कोक, कि उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी आग लगा दिया, ब्रांग से जल उठेगा। कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग चिकन तंदूरी, बहुत हीट है उसमें, so coke is used as reducing agent। यहीं से आता है। कार्बन हमेशा आप पढ़ोगे, कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आ गया। जहां ससुरा कार्बन अकेला दिखा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। कार्बन क्या है पता है? कभी आप वॉर की मूवीज देखते हो, इंडियन लड़ाई, दो राजाओं के बीच में लड़ाई, तो देखना एक तलवारबाज राजा के ऊपर हमला करने के लिए ऐसे रेडी हो जाता है, अचानक एक सैनिक आके महाराज करके वो खा लेता है ऐसे, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी, वो कार्बन है, महाराज करके वो त्रिशूल खाएगा। चले आगे, चलो ये वाला करो, MnO2 -2 +4, वेरी गुड, +1 -1, -1 मतलब -2 +2, 0, यहां में कितना है? -2 +1, वाटर इज ऑलवेज -2 +1। अच्छा, ये सब जब करते हो ना, दिस कोफिशिएंट्स आर नॉट टू बी यूज्ड ना, कोफिशिएंट्स को यूज नहीं करते, वी जस्ट यूज द बेयर द मॉलिक्यूल। कुछ दिखाई दे रहा है भाई साहब? मैंगनीज पे नजर डालिए सबसे पहले, मैंगनीज +4 से इस शेयर की कीमत घट के हो गई है +2, ये कुछ नजर आया हमें। हाइड्रोजन को देखो तो +1, ससुरा +1 पे ही है, वाह जबरदस्त। ऑक्सीजन -2 पे ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा बैठ के तमाशा देखते हैं, वो लोग कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना, बाकी लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। अभी क्लोरीन को देखो, क्लोरीन कितना है? -1, यहां पे क्लोरीन क्या है? -1, मींस 4 of chlorine are there. Please understand, out of, this is a very complicated reaction which you should know, out of 4 chlorine, 2 chlorines had no change in their oxidation state, -1 to -1, but 2 chlorines did have an oxidation state change। -2 से कहां पे गया? -1 से कहां पे गया? 0 पे गया। क्या आप मैप कर सकते हैं अभी? this process is a reduction, this process is an oxidation। आओ करते हैं। Mn, तो Mn वाला यहां से यहां बना, दैट इज +4 to +2, तो ये हमारा बन गया रिडक्शन। और यहाँ पे HCl वाला यहां से यहां क्या बना? ऑक्सीडेशन। हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? MnO2। MnO2 को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? HCl, 4HCl। HCl4 तो नहीं बोलते, HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अंगद कुछ भी मत सोचो, सब करेक्ट है। हाँ, एकदम सीधा सोचो, सीधा सोचो। हाँ सर, जो बता रहे हैं ठीक है, सदियों से यही सत्य था, आगे भी सत्य होगा, है ना? +4 to +2, like it looks like, you know, electrons are reducing, but इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं लेना देना, वी आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट एट ऑल। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आई विल यूज इन डिफरेंट इक्वेशन। हियर वी आर, हमने क्या क्या प्रोसेस देखा था? बाय ऑक्सीजन, बाय हाइड्रोजन, बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे बड़ा फिंगर डाला हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय इलेक्ट्रॉन, बाय मेटल एडिशन। बाकी सब बंद करके सिर्फ ये रखिए, हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं पढ़ा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशंस, आयोनिक इक्वेशंस, आपके सीबीएसई में नहीं है, पर हम करेंगे एक दो, अभी तो टाइम है ना, इट्स अ टाइम फॉर अस। बहुत बॉल है यार, 50 ओवर्स में 270 मारना है, थोड़ा सा ऐसे खेलेंगे वैसे।
जब मैच बेकाबू होगा तब देखेंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत टाइम पास मारते हो। यस सर। Why did manganese? बात मत करो। Hey, why are you putting hand on the wall? How dare you do that? हाँ बोलो, why? What is manganese? Why did manganese valency change? नहीं, oxidation state change हुआ है. This is the beauty of oxidation state. In this compound, manganese oxidation state is +2. This is not valency. This is oxidation state. It is an apparent charge which is appearing on it. ये valency नहीं है. और जब आप वैलेंसी, और ये होता क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट वैलेंसीज। मैंगनीज इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसीज होता है, वो आप ग्रेड 11 वो अभी पढ़ा, बोलेंगे तो बहुत बेकार लंबा हो जाएगा। मैग्नीशियम इज Mg, दिस इज मैंगनीज। मैग्नीशियम, यस सर। या वो खुद खराब हो गया या अच्छा हो गया तो ही इज द, उल्टा होता है ना। द वन हु बिकम्स अ बैड बॉय इज द गुड बॉय क्रिएटर। चले आगे, चलो 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 खत्म करो। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो एकदम आसान है। लेकिन देखो इस इक्वेशन को अगर आप एनसीईआरटी के नजरिए से देखोगे तो क्या बोलोगे? सर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। See the beauty where the NCERT information will be less for you. अगर आप इसे NCERT के नजरिए से, वेदांत इधर देख, लिखना बाद में। NCERT क्या कहता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें सिर्फ एडिशन दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन मैंने क्या कहा? अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा ही होगा साइमल्टेनियसली। तो कॉपर कितने में है? लड्डू। ऑक्सीजन कितने में है? लड्डू। यहाँ कॉपर कितने में है? +2। ऑक्सीजन कितने में है? -2। तो कहानी सीधा है। कॉपर +2 से क्या 0 से बना +2? कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग वन। हाँ, ये भी इसीलिए तो बोला, ये आप डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ऑक्सीजन से पढ़ना है तो ऐसा है, ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ और कॉपर को एक ऑक्सीजन जुड़ा। हमेशा हम सोचते हैं ना 2-2 प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसको जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हो तो द जॉब बिकम्स वेरी इजी। सो कैन वी राइट नाउ? अच्छा कैसे लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Cu got oxidized to what? CuO। एंड रिडक्शन किसका हुआ बेटा? ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ किसमें? CuO में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना? ये बना। रिडक्शन ये बना। आगे बढ़े, चलिए खत्म करना जल्दी जल्दी जल्दी। चलो नंबर अलॉट करते हैं। शैल वी? -2, 2 into -2 is -4 +4। इसमें कितना है? +1। और सिर्फ H2S को देखिए, +2 तो दिस इज -2। इस 2 को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, जस्ट H2S को देखिए। हाँ, no, this coefficient is balancing 2 is not required. You just see the molecule. The molecule is H2S. No molecule in this world has got a scalar coefficient that we use for balancing. So you will just read H2S. In H2S, hydrogen is how much? +1. +1 into 2 is +2. That means sulfur must be -2. Very good. और यहाँ पे तो पता ही है +1 -2 और यहाँ पे लड्डू। आ जाओ, -2 से 0 गए, इंक्रीज हुआ है। -2 to 0 is an increase, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या है सल्फर का? -2 से, देखो पूरा अच्छा मजेदार गेम है। देखो ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन +1। मतलब ये लोग सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहा है। पूरा गेम कौन खेल रहा है? सल्फर खेल रहा है। सल्फर कभी ऑक्सीडाइज हुआ और सल्फर कभी -2 to 0, सॉरी -2, 1 minute, -2 to 0 is oxidation, sorry, +4, 1 minute, हाँ +4। सो +4 से वो गया है 0 में, ये मैंने गलत लिख दिया है, +4 से 0 गया है। वेरी गुड दीपांशु। +4 से 0 is reduction
and -2 से 0 is oxidation. Very sorry, oxidation. So it is. So if we write it, how will we write oxidation? क्या लिखेंगे? Okay. Is H2S got oxidized to sulfur, and what is the reduction? SO2. No, sulfur. The sulfur's valence is 2, right? Sulfur has 8 valencies, 8 different valencies. पॉलीएटॉमिक है वो पॉलीवैलेंसी है ना, उसको सल्फर का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. With sulfur to use. विद सल्फर टू यूज. यहाँ पे डेटा एक मिनट एक एक करके आप डेटा डालो. हमें सल्फर मल्टीपल दिखाता है ना, हाइड्रोजन डालो, सल्फर अपने आप बता देगा. वही तो मैंने बोला, देखो सल्फर कभी प्लस, यहाँ पे सल्फर कितना है +4, यहाँ पे -2. तो अंगद पूछ रहा है हमें कैसे याद रहेगा? नहीं याद रखो, आप ऑक्सीजन याद रखो तो आपको ऑटोमेटिक सल्फर पर देगा. बोलो बेटे. सर वो आपने रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन सेम प्रोडक्ट में पास किया ऐसा आ रहा है कौन सा? सर, वो भी रिड्यूस सल्फर में हो रहा है ये. हाँ, सल्फर कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडेशन. SO2 इज नाउ एक एक करके करते हैं. ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? SO2 हैज गॉट, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ है H2S का, ऑक्सीडेशन हुआ है टू सल्फर. ठीक है, अभी हमें क्या लिखना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. द रिड्यूसिंग एजेंट इज H2S. Sulfur when combines with hydrogen forms hydrogen sulfide, then it is taking the part of reducing agent. वही सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो आपने लिखा ना रिड्यूस सल्फर में और ऑक्साइड. हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. और इक्वेशन आएंगे ऐसे. इसीलिए तो कहता हूं ये टेक्निक याद रखो. इसको खाली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तुम आंसर नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे. नहीं, आप क्या करो ना, हमेशा पहले ये मैपिंग बना लो, फिर यहाँ पे इसको गलती मत लिखो, ये पार्ट को सही लिखो. ठीक है, जहां O है वहां RA लिख दो, जहां R है वहां OA लिख दो. हाँ बस, हर जगह दिमाग लगाना ठीक नहीं है, कुछ कुछ जगह दिमाग को खाली छोड़ दो, ज्यादा बेटर आंसर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये देखो, ये अक्षत, ये तुम्हारे लिए और एक गिफ्ट है, ये और मजा आएगा. अच्छा अंगद, टेल मी सल्फर +1 -2, लड्डू +1 -1, लड्डू. आ जाओ, सल्फर को देखो तो सल्फर अगर हम यहां से देखें, सॉरी, -2 इज बिकमिंग 0, -2 से 0 गए हो, ऑक्सीडेशन. और यहां पे आयोडीन का देखो तो 0 से -1 गए हो, reduction. So we will write who is getting oxidized. H2S got oxidized to sulfur and iodine got reduced to hydrogen iodide. More and more oxidation and reduction in an equation. एक oxidation पे एक reduction. Is it possible? There it is a pub on a Friday night, no stag entry. X number of girls dancing means X number of boys are also dancing. As simple as that. समझ में आ गया? पब में पता है ना, फ्राइडे नाइट स्टैग एंट्री इज नॉट अलाउड. बड़े है ना, पब का स्टैग एंट्री भी नहीं पता तुम्हें. स्टैग मतलब अकेले नहीं घुस सकते हो तुम, यू हैव टू एंटर एज पेयर्ड. सीखे, कोई इनसे सीखे. कर लोगे इसको भी? चले अगला. चलो जल्दी. और एक मजेदार चीज बताना है आपको. क्या है ये? लड्डू. यहाँ पे कितना है? -2 +1. हाँ, तो क्या हो गया? सोडियम गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन गॉट रिड्यूस्ड टू सोडियम ऑक्साइड. ऐसे भी सोडियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम गॉट ऑक्सीडाइज्ड. कितना इसमें दिमाग लगाना. क्लियर? बना दें एक बार फिर से. 0 से लेके +1 बने, तो ये बना आपका ऑक्सीडेशन, ये बना आपका रिडक्शन. भैया बाद में इतना टाइम नहीं दूंगा इस टॉपिक पे. चल एक और लास्ट. ये है लड्डू, ये है -2. Pb मतलब लेड, +2, लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन. अकेले है, कार्बन अकेले है. कार्बन इज ऑलवेज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है. हाँ, क्या हुआ? क्यों +1 होगा? इतना देर के बाद पूछ लो, सर सीता भीम की बीवी थी, हमने बोला ना ये 2 कंसीडर ही नहीं करना है, बोला नहीं था?
तो फिर क्यों बोल रहे हो ये +2 होगा? आ जाओ, ये हो गया लड्डू, ये हो गया -2 और ये हो गया +4। तो कार्बन का स्टेटस क्या हुआ? 0 से 4, कार्बन गॉट ऑक्सीडाइज्ड and so carbon is also the reducing agent. ये कार्बन will be in the form of coke. This is exactly ऑक्साइड से मेटल को निकाला हमने, मेटलर्जिकल रिएक्शन है ये। और हाँ, लेडी तो बना है, पीबी मतलब प्लम्बम। और ये क्या हो गया? ये हो गया -2 से 0। हाँ नहीं, कार्बन का था 0 to this और यहाँ पे लेड +2 से 0। हाँ, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चले आगे, नेक्स्ट। चलो, नाउ दिस फ्रॉम हियर, एक मिनट, आपने बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दिखा रहा हूं, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई एम टीचिंग यू इन द रिवर्स प्रोसेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो रेडॉक्स रिएक्शंस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो रेडॉक्स। देखो कि इसको तोड़ते हैं, इसको मजा से तोड़ते हैं। अब इसमें आप वो सब दिमाग मत लगाइए। Sulfate as an anion is always -2. Sulfate as an anion is always -2. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, ये सिर्फ तमाशा देखते हैं, इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। ये सिर्फ खेल देख रहा है, इसका कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो यहाँ कुछ करते नहीं होते। बैठ के मजा लेता है, ये घर की छोटी बहू जैसी है। दंगा हो रहा है ना, हाँ माँ जी मैंने तो रोटी बना दी है, मजा ले रहा है ये। कॉपर का क्या हो गया इधर पे? +2, ये 0। कितना इजी हो गया, ये +2 ये 0। तुम एक ही बार में बोल सकते हो +2 से 0 हुआ रिडक्शन और 0 से +2 हुआ ऑक्सीडेशन। इस चीज को अगर हम इलेक्ट्रॉन के मेथड में देखें ना, कॉपर वाज +2 तो बिकम कॉपर एज 0, copper must have gained 2 electrons, then only copper will become copper 0. Do you agree or not? gain हुआ है रेग। अरे आर का आर मिलन देखो, दूसरे टेक्निक से भी करेक्ट है। और जिंकुआ कैसा है? सर जिंकुआ बहुत अच्छा बच्चा था, अभी वेदांत जैसा शैतान बच्चा बन गया है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खोया है, लॉस। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से। किसी का गर्लफ्रेंड उड़ा के अपने बाइक में बिठा के ले जाना है। पीबी अकेला घूम रहा था हार्ले डेविडसन लेके, ये हीरो होंडा में, और फिर क्लोरीन ने कहा मुझे पसंद है, आई लाइक हिज बाइक यू नो, सो लेट्स बी गुड फ्रेंड्स। और कॉपर क्या बोलता है? शी डच मी। हमारा सर ऐसे ही पढ़ाता था। चलो आ जाओ करते हैं। कॉपर कितना है? -1 +2 लड्डू, -1 +2 लड्डू। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन मोड में देखें, Cu +2 must have gained 2 electrons to become this. एक और, एक लास्ट। नाइट्रेट। नाइट्रेट एज एन आयन इज ऑलवेज -1। आपको कैसे पता? HNO3 -1 +1 एसिड सोचने का। तो फिर Ag कितना है? अर्जेंटम +1, कॉपर 0, नाइट्रेट इज -1 into 2 -2, therefore copper must be +2 और ये 0 हो गया। केल खत्म। एक और, जब तक यहां ब्लड नहीं होता है सोचना है। कंप्लीट नहीं हुआ क्या? अरे ये आएगा ना, आपको पीडीएफ करके आएगा, कुछ तो खुद से करो। ये यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस ना, बाय द टाइम यू रीच होम इट विल बी देयर इन योर स्क्रीन। चले आगे। एक और, इसको करते हैं। Ki पोटेशियम आयोडाइड, लड्डू -1 +1 -1 +1 लड्डू। समझ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, इसको देखते हैं। Fe2O3 रिएक्शन। ये अच्छा बच्चा, गांधा बच्चा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये स्ट्रेट अवे ऑक्सीडेशन है और ये स्ट्रेट अवे रिडक्शन है। देखने की भी जरूरत नहीं है। See how your competency improves when you do questions. लेकिन घर में you भूतनिकास will not do 20 minutes तुम टेबल में नहीं बैठते हो। लेगिस पेनिंग, वॉशरूम जाना है, ये नमकीन लो, पॉपकॉर्न बनाओ और बैठ जाओ, एक सीरीज में निकाल दो, और नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊंगा, हर इक्वेशन, जरा ये इक्वेशन देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्कूल में शायद पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो।
ठीक है, बैलेंस हो गया भाई साहब। सोडियम क्लोराइड 2 NaCl BaSO4 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2, इसको 4 ले लो। नहीं कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट। इतना भी ये नहीं है, 1 मिनट जस्ट 1 मिनट। हाँ, Na2SO4, दैट वाज माय मिस्टेक, राइट, सॉरी, थैंक यू सो मच। सो ये रिएक्शन को जरा देखते हैं। सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बैरियम क्लोराइड to give you barium sulfate and sodium chloride, ठीक है। SO4 Ba Cl2 Na2SO4, ठीक है। अब हो गया है, जरा ये रिएक्शन को देखते हैं। तो सल्फेट एज ए आयन इज ऑलवेज -2, सोडियम इज +1 into 2 +2, क्लोरीन इज -1, बेरियम शुड बी +2। Sulfate is -2 as a whole, barium should be +2, -1 +1। ये शोले का डायलॉग है। हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले, किसी का चेंज है? देखो तो, सोडियम +1 +1, बेरियम +2 +2, क्लोरीन -1 -1, SO4 -2 -2। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस। ये आपको आपका स्कूल और किताब नहीं बताएगा, ये आपको छोटा सा पहलू दे दिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा सर कैसे पढ़ाता था, ये फेडअप हो गया अपना पार्टनर से, ये भी फेडअप हो गया, वो स्वैप कर लिए पार्टनर्स को। तुम भी खुशी से जीने का, मेरे को भी, नो डिवोर्स मनी, नथिंग टू बी पेड, हैप्पी रिएक्शन। हाँ सर ऐसे ही पढ़ाते थे, ठीक है ना। इसमें नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। आज का रंगारंग कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। बोलते ही उड़ गया लड़का, ठीक है।